नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। कमठाना में बीदर दक्षिण के नेता का 50वां जन्मदिन मनाया गया। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी भास्कर राव बने आप अध्यक्ष। कर्नाटक में 178 कोविड के नए मामले दर्ज। चीन को घेरने की तैयारी, पहली बार 10 एशियन विदेश मंत्रियों की मेजबानी करेगा भारत। राज्यसभा चुनाव, हरियाणा में बिगड़ा कांग्रेस का प्लान, माकन के आउट होने का डर, जयपुर शिफ्ट होंगे एमएलए। बीजेपी में आकर कांग्रेस को हर 10 दिन में झटका देंगे हार्दिक पटेल, बताया क्या है छोटे सिपाही का प्लान। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। चंद्र सिंह, बीदर दक्षिण के नेता का कल 50वां जन्मदिन कमठाना ग्राम में धूमधाम से मनाया गया। फॉलोअर्स और जनता का हुजूम उमड़ पड़ा। इस मौके पर चंद्र सिंह की रैली को जुलूस की शक्ल में कमठाने की मेन रोड से जेपी ग्राउंड तक लाया गया। जुलूस में डॉक्टर अजय सिंह जावरागी, विधायक के अलावा विधान परिषद सदस्य भीमराव पाटिल, धर्म सिंह की पत्नी और दूसरे लीडर उपस्थित रहे। मंच पर सभी धर्म गुरु, तालुका व जिला पंचायत सदस्य के अलावा दूसरी जाति और धर्म के लोगों ने जन्मदिन के उत्सव में भाग लिया। डॉक्टर अजय सिंह और चंद्र सिंह ने संबोधन किया। इस बीच अजान की आवाज पर उन्होंने अपने संबोधन को कुछ समय के लिए रोक दिया। मंच पर एसएसएलसी में टॉपर और सेवानिवृत्त सैनिकों को सम्मान किया गया। केपी न्यूज के रिपोर्टर असलम खान की रिपोर्ट। ದೇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರುಜಿಗಳಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಎನ್ ವಿ ರೆಡ್ಡಿ ಗುರುಜಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಾಲುಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಗುರುಜಿಯವರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಅವ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಊರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾನು 12 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರ ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ. ಡೇ ನೈಟ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 12 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷ ತಗೊಂಡ್ಬಾರ್ದಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದುಡಿದಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ನಾನು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ, ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧರ್ಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಾದ ಕಮಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂತಹ, ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನೂತನ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅಜಾನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು. ಕಾವ್ಯಾನಂದವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ, ಕೇರಳದ ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ಇದೇನಾದರೂ ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿ
ಇದೇ ಘೋಷ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿ. ನಿನ್ನ ನುಡಿ ನನ್ನ ನುಡಿ, ನಿನ್ನ ಗಡಿ ನನ್ನ ಗಡಿ ಸುಸರ ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಆಜಾನ್ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲಾಲ್ ಕಟ್ ಅಂತ ಅವರು ಏನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಾಗಿರುವಂತಹ ದಿವಂಗತ ಧರಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವರಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕೂಡ ನನಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ 10 ದಿವಸ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಬರಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತೆ ಪರಮ ಪೂಜೆಯವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪರಮ ಪೂಜೆಯವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನವಲಿಂಗ್ ಅವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी भास्कर राव को गुरुवार आम आदमी पार्टी की कर्नाटक इकाई का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भास्कर राव को शुभकामनाएं दी हैं। कर्नाटक राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार 178 कोविड-19 के नए मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में सक्रिय मामले 2001 हैं, जबकि सकारात्मकता दर 0.89% है। बेंगलुरु अर्बन में एक दिन का टैली 158 था। 206 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। भारत अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों तक पहुंच का विस्तार करने में जुटा है और इन देशों में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को टक्कर देने के लिए अपनी नीतियों को और मजबूत बना रहा है। इस क्षेत्र में चीन के बड़े पैमाने पर घुसपैठ के बीच एक व्यवहार्य भागीदार बनने के लिए भारत 15 से 17 जून को दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के सभी 10 देशों के विदेश मंत्रियों की मेजबानी करेगा। यह पहला अवसर होगा जब भारत दक्षिण पूर्व एशियाई के सभी 10 विदेश मंत्रियों की मेजबानी करेगा। यह मेजबानी भारत आसियान साझेदारी के 30 साल और आसियान के साथ 10 साल की रणनीतिक साझेदारी के उपलक्ष्य में हो रही है। ईटी की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में कनेक्टिविटी, निवेश, आपूर्ति श्रृंखला, समुद्री सुरक्षा के मुद्दों के अलावा पिछले सप्ताह टोक्यो में घोषित इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पर चर्चा करने की उम्मीद है। राज्यसभा चुनाव में राजस्थान के साथ साथ हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 10 जून को होने वाले चुनाव में क्रॉस वोटिंग की आशंकाओं के बीच कांग्रेस नेतृत्व ने गुरुवार को नई दिल्ली में एक बैठक के लिए शीर्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित हरियाणा के अपने 31 विधायकों को बुलाया है। पार्टी ने निष्कासित नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे और मीडिया समूह के मालिक कार्तिकेय शर्मा के हरियाणा से राज्यसभा के लिए एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कांग्रेस परेशान है। शर्मा को हरियाणा में भाजपा के 10 विधायकों का समर्थन प्राप्त है और उन्हें भाजपा के साथ साथ कई निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन मिलने की संभावना है। कांग्रेस ने अजय माकन को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी नेतृत्व पहले सभी विधायकों की बैठक करेगा और उन्हें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक रिसोर्ट में भेजा जाएगा। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, दुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाएगी। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097।
ब्रेक के बाद देखते हैं अन्य समाचार। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में आज के माता पिता यानी कलयुग के रावण अपनी बेटी को लाखों में रिश्ते के नाम पर बेचा। लड़की ने शादी से मना किया तो माता पिता ने जान से मारने की दी धमकी। बाद में मन नहीं भरा तो लड़की, जिसका नाम प्रणति मौर्य पुत्री हरज्ञान मौर्य, जिसकी शादी पंकज मौर्य के साथ हुई थी, बाकी कमी पंकज पुत्र गंगा शरण ने लड़की के साथ जो किया वो लड़की मुंह जुबानी सुने। उसके जनपद मुरादाबाद के ग्राम फतेहपुर नथ्य निमरीहाल निवासी ग्राम देवरखेड़ा तहसील चंदौसी जनपद संभल के हैं। वैसे तो योगी सरकार में बेटी बचाओ का नारा बड़े जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन कार्यवाही उतनी ही कम हो रही है। बाकी लड़की के परिवार के कुछ नाम एसपी साहब के यहाँ भी तहरीर में भी दिए हैं। संभल से संवाददाता रजा हुसैन की रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम सरप्रीति मौर्य है। रहने वाली कहाँ की हैं आप? मैं नीति फतेहपुर नत्था जिला मुरादाबाद। तो किस मामले में आई हुई हैं आज न्यायालय में आप? सर मैं इस मामले में आई हूँ, मेरे माँ बाप ने मेरी जबरदस्ती धमकियों से शादी की है। कहाँ पर शादी कराई है? भीतर गाँव। तो अब क्या परेशानी ऐसी हुई है, दिक्कत बड़ी है आपको? परेशानी, वो मारता है, मुझे पीटता है और उसका दूसरे के साथ अफेयर चल रहा है अपने सगी चचेरे मामा की लड़की से। तो आपकी शादी आपकी बिना मर्जी से हुई या बिना मर्जी से हुई? बिना मर्जी से हुई, मेरी मर्जी के खिलाफ हुई, दबाव में हुई है। उम्र कितनी है आपकी? मुझे मुझे भेज दिया है मेरे माँ बाप ने। आपकी एज कितनी है? मेरी एज 22 साल है। 22 साल। कितनी आप पढ़ी हुई हैं? मैंने बीए कर लिया और ITI कर ली है। तो अब जो आपके मामा जी जो हैं और बाकी जो हैं वो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आपके घर पे आ रहे हैं या मामा जी के पास आ रहे मेरे हैं? मामा जी, मेरे पापा जी। मामा जी क्या नाम है? मामा जी का नाम राकेश, छोटे वाले मामा जी का नाम घर से बाहर। इनकी शादी करके लाए, वैसे नहीं जा रही हूँ मैं। जी, तो आप माता पिता के पास क्यों नहीं जाना चाहते मैं हैं? नहीं जाना चाहती सर, मेरी जान को खतरा है, क्योंकि मेरी बड़ी बहन भी मार दी, फांसी दे दी इन लोगों ने। उसका अंतिम संस्कार भी ढंग से नहीं किया, रात में उसकी भस्म भी। तो आपकी बड़ी वाली बहन भी इनके घर में थी? नहीं, वो तो परिवार में थी? उनकी शादी नहीं हुई थी सर, कुंवारी घर पे ही मार दी थी? हाँ, घर पे ही मार दी थी। माता पिता ने आपके? जी सर, टॉर्चर कर करके। और आप इस समय जो अब जो सुपुर्दगी मिली हुई है तो आप अपने मौसा जी का रह रहे हैं, तो यहाँ पर मतलब बदमाश आ रहे हैं या फोर्स आ रही सर, है? यहाँ रोज 10-12 लोग आते हैं, 15-16 रोज। मेरे माँ बाप ने बदमाश लगा दिए हैं मुझे जान से मारने को, और मौसा जी डराते हैं, धमकाते हैं कि हमें सुपुर्द दे दो, हमें इस लड़की को ले जाना चाह रहे हैं। कहीं की पुलिस भी आती है या? जी सर, पुलिस नहीं आई, लेकिन बदमाश आ रहे हैं सर रोज। चलो ठीक है, यही पूछना चाहता। सरकार वारिस से पाक आलम पनाह का सालाना उर्स मुबारक अपनी रस्मों के साथ संपन्न हो गया। मुल्क व शहर में अमन शांति एवं भाईचारे की दुआ की गई। बुधवार की सुबह सादिक नगर के मोहल्ला कोट पूर्वी स्थित अंजुमने वारिसिया डाकखाने पर सरकार वारिस पाक आलम पनाह का सालाना उर्स मुबारक अकीदत के साथ मनाया गया। अंजुमे वारिसिया संभल की ओर से आयोजित उर्से वारिस पाक में असलम वारसी, कव्वाल उछारी, राजा सरफराज रामपुर ने सूफियाना कलाम पेश करते हुए अकीदतमंदों को झूमने पर मजबूर कर दिया। पूरी रात चले कार्यक्रम के बाद सुबह सादिक 4:13 पर हाजी हाफिज सैयद सरकार वारिस पाक आलम पनाह के कुल शरीफ की रस्म अदा की गई। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने भाजपा का हिस्सा बनने से पहले ही अपनी योजना जाहिर कर दी है। पटेल ने संकेत दिए हैं कि वह नाखुश कांग्रेस नेताओं को बीजेपी में लाने पर ध्यान देंगे। कांग्रेस ने लंबे समय तक चली नाराजगी के बाद उन्होंने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को संदेश भी लिखा था। गुरुवार को अहमदाबाद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पटेल ने कहा, आज मैं नया अध्याय शुरू कर रहा हूं। मैं एक छोटे सिपाही के तौर पर काम करूंगा। हम हर 10 दिनों में एक कार्यक्रम करेंगे जिसमें विधायक समेत कांग्रेस से नाखुश लोगों को भाजपा में शामिल होने के लिए कहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे दुनिया की शान हैं। राजधानी गांधीनगर में भाजपा कार्यालय के बाहर स्वागत की तैयारियां जारी हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के दैनिक मामलों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। देश में करीब 22 दिनों के बाद मामले 3000 के आंकड़े पार कर चुका है। 24 घंटे में देश में 3712 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 5 कोविड संक्रमितों की मौत हुई। नए आंकड़ों को मिलाकर देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 4,31,64,544 पर पहुंच गई है।
वहीं अब तक 5,24,641 मरीज जान गंवा चुके हैं। बीजेपी पर अक्सर बड़े बड़े आरोप लगाने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की तुलना गिद्धों से कर दी और इसे अक्षम राजनीतिक दल करार देते हुए कहा कि देश की भलाई के लिए भाजपा को हराया जाना चाहिए। ममता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की खराब आर्थिक नीतियों के कारण देश गेहूं संकट का सामना कर रहा है। भाजपा नीति केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि नोटबंदी जैसे गलत फैसलों ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है और देश में बेरोजगारी बढ़ी है। बनर्जी की गिद्धों से तुलना वाली टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा प्रवक्ता समीप भट्टाचार्य ने कहा कि यह बयान तृणमूल कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, हम सभी तृणमूल कांग्रेस की कार्यशैली से भलीभांति परिचित हैं। पिछले साल अगस्त में तालिबान द्वारा देश पर कब्जा करने के बाद भारत की टीम पहली बार आधिकारिक यात्रा पर काबुल पहुंची है। केंद्रीय विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम अफगानिस्तान की राजधानी पहुंची है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि काबुल में वे तालिबान के वरिष्ठ सदस्यों से मुलाकात करेंगे और अफगानिस्तान के लोगों को भारत की मानवीय सहायता पर चर्चा करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान में मानवीय सहायता अभियान का जायजा लेने के लिए भारत से विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का दल काबुल गया है। विदेश मंत्रालय से बृहस्पतिवार को एक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के अनुसार मंत्रालय में संयुक्त सचिव के नेतृत्व में अधिकारियों का एक दल अफगानिस्तान गया है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। कमठाना में विदर्भ दक्षिण के नेता का 50वां जन्मदिन मनाया गया। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी भास्कर राव बने आप अध्यक्ष। कर्नाटक में 178 कोविड के नए मामले दर्ज। चीन को घेरने की तैयारी, पहली बार 10 एशियन विदेश मंत्रियों की मेजबानी करेगा भारत। राज्यसभा चुनाव, हरियाणा में बिगड़ा कांग्रेस का प्लान, माकन के आउट होने का डर, जयपुर शिफ्ट होंगे एमएलए। बीजेपी में आकर कांग्रेस को हर 10 दिन में झटका देंगे हार्दिक पटेल, बताया क्या है छोटे सिपाही का प्लान। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।